Hello friends, let's continue our exercise question. Last lecture we had completed the last one as fifth one, जो हमारा main question number second का fifth हमने finally complete किया है. Next question sixth हम लोग continue करेंगे. Instruction is that same only, you have to convert in a plus bi form. And you have to represent the values of A and B after converting it. So question number 6 I am taking, in which it is 2 plus 3i, and in another bracket it is 2 minus 3i. अब देखोगे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह का सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, एग्जैक्टली इट इज इन द सेम फॉर्मेट, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन दिया है, सो वी कैन सिंप्लीफाई इजीली. Rather than you expand this bracket, you can see it is exactly in the formula of a plus b, a minus b, and that is nothing but a square minus b square का जो result है a plus b, a minus b. This particular result you can directly implement, else you can expand the bracket and you can continue with that. So this is particularly we can say 2 square minus 3i whole square, a square minus b square result. Next one, it will be 4 minus 3i whole square, that is it will be 9i square, 9i square. And further it will be 4 minus I square की जगह पे स्टूडेंट minus 1 I square minus 1, and finally this will be 4 plus 9 and it is going to be plus 13. अब स्टूडेंट देख लो, यहाँ इमेजिनरी टर्म एलिमिनेट हो गया पूरा, मतलब कि यहाँ आंसर हमको लास्ट में जो 13 मिला, इट इज ओनली रियल व्हाट वी आर गेटिंग. सो वी कैन से हियर टू जस्ट रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट 0i हम इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं, बट इट इज नो मीनिंग, but just for writing sake in the form of a plus bi, we are just making it 0i in imaginary part के जगह पे, which is in the form of a plus bi, where a is equals to 13 and b is equals to 0. Are you getting, students? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया. Now moving to the question number 7. Next question number 7. What is that? It is 4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 upon 3i raised to 11 minus 4i raised to 10 minus 2. So this is a question given to you, and importantly यहाँ पे आप देख लो स्टूडेंट, i के पावर में आपको वेराइटीज नंबर्स अवेलेबल है. i raised to 8 है, i raised to 9 है, i raised to 11, i raised to 10 है. This particular in the basic lecture, in the theory lecture, we have learned how to convert higher order power of i. और आपको चाहिए तो आप सबको अलग से कन्वर्ट भी करके ले सकते हैं, and then you can substitute in this, or you can have simultaneous solving in that only you can convert. मतलब आप सॉल्व करते जाओ, उसमें ही आप पावर की वैल्यू को कन्वर्ट करते जाओ. कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई उसके पावर की वैल्यू अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन वी सब्स्टिट्यूट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो बाद में हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, साथ में ही मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो वेरी फर्स्ट 4
as it is I raised to 8. I raised to 8 को स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी I, मैं एक स्टेप ज्यादा करता हूं, अदरवाइज आप इसके बाद वाले स्टेप को भी डायरेक्ट जा सकते हैं जो आपको ये स्टेप डायरेक्ट समझ में आता है तो, बट आई एम डूइंग फॉर दो स्टूडेंट जिनको कुछ बेसिक समझने में दिक्कत है, तो मैं ये स्टेप जानबूझ के ज्यादा कर रहा हूं ताकि दे कैन गेट मोर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट, एल्स यू कैन इग्नोर दिस स्टेप इफ यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो आप 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 into 4, 2 into 4 माइनस 3। I raised to 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? I into I raised to 8 and plus 3 as it is upon डिनोमिनेटर में भी जो 3I raised to 11 है, this I raised to 11 you can write as I into I raised to 10 minus 4. I raised to 10 you can write I raised to 2 into 5 minus 2 as it is। ये स्टेप सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखो ये डायरेक्टली समझ में, डायरेक्टली ये स्टेप करता भी हूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विथ दिस इंडाइसिस रूल। तो आपको ये सब बेसिक बात पता है, यू कैन गो फॉर दिस डायरेक्ट स्टेप ऑल्सो। so now after that I am writing this step as 4I square whole raised to 4। पावर्स पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, इसलिए 2 जो पावर में है I के, I raised to 2 whole raised to 4, तो ये दोनों पावर हो गए, पावर के पावर में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, मतलब ये हो गया देखो स्टेप 2 into 4। नेक्स्ट 3 into this I remains as it is and this next I raised to 8 I can write 2 whole raised to 4। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट जाओ, आपको कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट लाइक दिस प्लस 3 और चेक कर लेने का वट एवर यू हैव रिटन कि अर्लियर स्टेप के हिसाब से हमको वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सम केसेस इफ यू हैव सम डाउट देन यू कैन वेरीफाई। चलिए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 3I एंड I रेज टू 10 को मैं लिखता हूं I स्क्वायर होल रेज टू 5 माइनस 4 इंटू I स्क्वायर होल रेज टू 5 माइनस 2। बहुत ही पेशेंसली करना है, शांति से करना है, कभी किधर इसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो वहां से रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन, अच्छा 4 इंटू I स्क्वायर इज माइनस 1 होल रेज टू 4, कंटिन्यू 3I एज इट इज I स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4 एज इट इज प्लस 3 अपॉन 3I स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 5 minus 4 I square minus 1 whole raised to 5 minus 2। further minus 1 raised to 4, ये 4 तो एज इट इज है, माइनस 1 raised to 4 कोई भी नेगेटिव टर्म के पावर में इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और 1 4 टाइम 1 minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 that is going to be plus 1। डायरेक्टली देखना कि भाई पावर में इवन नंबर है और नेगेटिव टर्म है बेस में, तो ऑब्वियसली आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट 3I अगेन दिस इज 1 प्लस 3 अपॉन 3I। अब यहां देखो दिस इज माइनस 1 रेज टू 5, अब माइनस 1 के पावर में 5 ऑड है, तो ऑड जब भी पावर है नेगेटिव टर्म के ऊपर तभी आपको आंसर माइनस मिलता है। तो ये रूल ध्यान रखो, चाहे तो साइड में लिख के रखो कि जो पॉजिटिव पावर होता है और हमारे बेस में पॉजिटिव नंबर है उसके पावर में ऑड भी हो सकता है या पॉजिटिव नंबर के ऊपर इवन पावर भी हो सकता है।
ये एक सिचुएशन हो गई, लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है बेस में उसके पावर में या तो इवन नंबर है या तो नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर है। तो इफ नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है, जैसे कि हमने देख लिया -1⁴, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और जो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर ऑड पावर है, जैसे कि हमने देख लिया ⁵ है, ऑड है ना वो, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये चीज हमको समझनी है हमारे एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में। आर गेटिंग? नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा -1⁵, दिस इज -1 -4, अगेन 4 into -1⁵ -1 -2, कंप्लीट यहां तक। अब देखो जो भी रिजल्ट हो रहा है इसका आगे आप सिंप्लीफाई करो। 4 into 1 4 -3i into 1 that is 3i plus 3 upon 3i into -1 that is -3i -4 into -1 this is +4 -2, finally 4 plus 3 7 -3i upon 4 -2, मैं पहले लिखता हूं उसका आंसर 2 और -3i। अब यहां तक का हमको जो स्टेप मिला है ये हमारे लिए अब डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट से आगे बढ़ना है हमें। देखो ना, ऊपर न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड दैट इज अ केस ऑफ डिवीजन। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया हुआ दिख रहा है आपको, एंड फॉर दिस डिवीजन पर्पस यू नो व्हाट टू डू, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम परफॉर्मिंग दैट 7 -3i, ये तो न्यूमरेटर में है एज इट इज, अपॉन 2 -3i विच इज इन द डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, 2 -3i का, तो क्या 2 + 3i, तो 2 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। एंड नाउ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 7 into 2 + 3i -3i into 2 + 3i अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में ये कौन सा फॉर्मेट में है, a - b a + b, so it is going to be a² - b²। तो इसको एक्सपांड करिए, दिस इज गोइंग टू बी 14 + 21i -6i -9i² होल अपॉन 4 -9i²। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर न्यूमरेटर में 14, इमेजिनरी टर्म में 21i -6i, इट इज गोइंग टू बी प्लस, सब्ट्रैक्ट करिए स्टूडेंट, इट इज गोइंग टू 15i एंड -9i², i² के जगह पे -1, और अपॉन में भी 4 -9 i² के जगह पे -1। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ चाहिए तो लिख दीजिए i² इज इक्वल टू -1। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, 14 + 15i + 9 upon 4 + 9, this is going to be 14 + 9, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 23 + 15i upon 9 + 4, 30. So this is what ultimately you reach to this conclusion, that's 23
3 plus 5i upon 13, where denominator you can split and you can write like this, 23 upon 13 plus 15 upon 13i, जिसको हम बोल सकते हैं which is in the form of a plus bi, a plus bi, और ये जो है कंपेयर करेंगे where a की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 अपॉन 13 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 अपॉन 13। सो विद दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो पहले हमको i के पावर को कन्वर्ट करना पड़ा, जो पहले हमने स्टार्टिंग में देख लिया, और उसके बाद ये डिवीजन के फॉर्म में आने के बाद यहाँ से फ्रॉम दिस स्टेप ऑनवर्ड्स we have done that type of calculation where division कैसे करना है आपको वापस से ये रिवाइज हो गया, एंड लास्टली कंपेयरिंग विथ a plus bi के फॉर्मेट में लेके आने के बाद we got a and b values। बहुत ही आसानी से और शांति से करना है, किधर भी मिस्टेक मैं रिपीट करते रहता हूँ। ये रिपीट करने का कारण भी है कि मिस्टेक स्टूडेंट से कहाँ ना कहाँ ना हो, उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है और घाई करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में in beginning we need to go very slowly and then slowly and steadily you increase your speed। तो क्या है, हमें भी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। स्टूडेंट्स, यू कैन प्रॉपरली bring your answer without any mistake। Fine। So student, moving to the next question, next particular question। ये सेकंड के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। टोटल देयर वर 7 questions in that textbook, and now I am moving to the question number third, main question number third। okay, show that minus 1 plus root 3 I whole cube is a real number, and in this particular show that point of view we have to expand this given whole cube। होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बेसिकली मैं पहले आपको जनरल a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ मेंशन करता हूँ ताकि यू कैन इजीली अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये है ना बेसिक फॉर्मूला, और स्कूल में आपने पढ़ा है। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे मेरे लिए जो a और b बनता है, ये -1 जो है वो मेरे लिए a है, और ये √3i पूरा मेरे लिए b है। कंसिडर a एज -1 एंड b एज √3i, और उस हिसाब से हम एक्सपांड करते हैं। सो व्हाट विल बी द expansion? So let me first write down the same question, -1 plus √3i whole cube, और अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। सो फर्स्ट इज इन एक्सपांशन a क्यूब, सो -1 है वो a की जगह पे, उसका क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 -1 स्क्वायर b 3√3i प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट इज √3i होल क्यूब। बहुत आसानी से एक्सपांड करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए काम है। आपने जैसे स्कूल लेवल में किया है, बट बहुत को याद नहीं होता है। So you need to remember, because ultimately याद है तो आपका expansion बनेगा, and then you can further simplify properly। -1 का क्यूब ऑड पावर है, देख लो,
तो ये हो जाएगा -1 itself प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज +1 into 3 that is 3 and आगे जो है √3 into I which will be in the multiplication relation, it will remain as it is. Next 3 into -1, this is going to be -3 √3. अच्छा, अब यहाँ जो है ये √3 I का होल स्क्वायर है। हमने ये तो -3 तो मैंने लिख दिया बिकॉज +3 into -1, this is going to be -3. What is the next term? Look at the next term. √3I होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो √3 को भी लागू होता है और I को भी लागू होता है. So what I can write, √3 का स्क्वायर डायरेक्टली I can remove that root and I can write 3. And I square is I square as it is I am writing right now. But next step में I square की जगह पे -1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो 3 into -1, this is -3 और √3 का स्क्वायर 3I का स्क्वायर I स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस √3I होल क्यूब. अब ये इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, √3I का होल क्यूब, क्योंकि √3 का भी क्यूब होगा और I का भी क्यूब होगा. I और √3 दोनों मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है ना स्टूडेंट्स. तो ये जो क्यूब है, पावर जो है वो दोनों को अप्लाई होता है. तो मैंने दोनों के पावर के अंदर अलग अलग इंडिविजुअली लिख दिया है. यू गॉट दिस पॉइंट. नेक्स्ट -1 एज इट इज प्लस 3√3I minus, now this 3 into 3, this is going to be 9 and I square is going to be -1 प्लस. अब जरा यहाँ नेक्स्ट टर्म मैं किस तरह से आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ध्यान दीजिए. √3 का जो रूट है वो मैं निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/2. क्या होता है स्टूडेंट? 3/2. और इसके पावर में ऑलरेडी 3 अवेलेबल है एज इट इज. और रही बात I क्यूब की, I क्यूब को मैं लिख सकता हूं I into I स्क्वायर. So it is -1 plus 3√3I minus 9 into -1, this is going to be +9. And now in this 3/2 whole raised to 3, powers power multiply होता है, so this becomes 3/3/2. 3/3/2. और रही बात I into I स्क्वायर, तो I एज इट इज I स्क्वायर के जगह पे -1. नाउ ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर उसको ऐड कर देंगे आप, मतलब -1 plus 9, दिस इज गोइंग टू बी +8 प्लस 3√3I. और रही बात नेक्स्ट टर्म जो है, इसमें देख लो आप स्टूडेंट 3/3/2 और यहाँ है I into -1, दिस इज गोइंग टू बी -I. तो यहाँ ये साइन माइनस हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में. तो नेक्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा, दिस इज -3/3/2 I. अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना ये आगे बता देता हूँ. 3/3/2 को मैं आगे किस तरह से लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में कर रहा हूँ. 8 plus 3√3I minus, can you say 3/3/2, उसमें 3 न्यूमरेटर में, तो कैन आई राइट 3/3 होल रेज टू हाफ? यस और नो? जैसे यही स्टेप आप देख लो, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 3/2 और उसके पावर में 3. तो जैसे हम कोई इंडाइसिस रूल के अंदर x⁻m है होल रेज टू n है, तो वी कैन राइट लाइक दिस x⁻n होल रेज टू m. यस और नो?
अल्टीमेटली पावर्स पावर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो वही होने वाला है ना स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर होल क्यूब लिखूं और मैं लिखूं 2 क्यूब होल स्क्वायर, दोनों में आंसर 2⁶ और यहाँ पे भी 2⁶ सेम होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यस और नो? सो व्हाट इज द डिफरेंस देयर? 3½ whole⁻³ and here 3⁻³ whole⁻², नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो पावर में हाफ होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो कैन आई राइट 3 क्यूब अंडर रूट बिकॉज पावर हाफ इज कन्वर्टेड एज स्क्वायर रूट, आई मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज। और अब मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं, तो कि रूट के अंदर दिस इज 3 × 3 × 3, 3 क्यूब है ना, इंटू आई। सो कैन आई टेक 3 × 3 जो 9 होना चाहिए उसका स्क्वायर रूट 3 बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा स्टूडेंट्स? So this is going to be 3√3i, and now you can see plus 3√3i minus 3√3i is going to be cancelled, and what is the remaining answer? 8. Only 8 is remaining and no imaginary term remaining, therefore I can say which is a real number। तो हमको यही प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स बोला था ना कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर, शो दैट दिस पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। तो लास्ट में आपको 8 आंसर मिला, ये itself it is showing that it is a real number which is proved। बट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा ये इंडाइसिस रूल के आधार पे। आपने जो मैंने आपसे ये जो बातें की है इस पे आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना, और ये जो बाजू में मैंने जो रूल्स लिखे हैं they are very very important। so students, this question is important, mark it as important question। ओके, एंड प्रॉपरली इसका प्रैक्टिस लेना। होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, और एक्सपांशन के बाद जो हमने ये किया इसको आप प्रॉपरली नोटिस करके समझना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन नंबर 4। Main question number 4, what is the instruction given? Evaluate the following। Evaluate the following, and what is to be evaluated? यहाँ पे हमने को सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इवैल्यूएट i⁵35, and this is what we had already learned in that theory part कि भाई i के पावर में हायर ऑर्डर पावर होता है तो किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है। और अभी भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमको ये हमने देखा, 7 क्वेश्चन जो किया था ना उसमें भी अलग अलग पावर में नंबर्स थे, वो हमको सिंप्लीफाई करने पड़े। So this is what for the practice purpose they have given that this type of higher powers of iota I, how do we simplify? So i⁵35 I can write like this, I into i⁴। उसको इवन में लेके आना स्टूडेंट, ये मेरा टेक्निक समझ लो आप। Then next you can do it, I into i⁵34 you can write like this, i² whole raised to I am writing little bit this way, I into i⁵2। 34 का 2 के नंबर के साथ मल्टीपल ले लो, तो 34 का 2 के साथ मल्टीपल क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर लो उसको, 17। ठीक है, बहुत ही इजीली
तो ये जो है i इंटू आई स्क्वायर इज -1 होल रेस टू 17, दिस इज गोइंग टू बी i इंटू -1 के पावर में ऑड नंबर है, अभी हमने डिस्कशन में लिया था, वो चीज भी मैंने बाजू में आपको एज ए रूल लिखवाया हुआ है। तो i तो एज इट इज है -1 रेस टू 17, -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, मतलब -1 17 टाइम्स, and finally -1 into I, this is -I. This will be your final answer for I raised to 35. So this is what importantly conversion of the power, higher order power of your imaginary number, whatever the power they have provided to you, that is to be converted. Okay, so next particular question, I raised to 888. Okay, I raised to 888, second number. I raised to 888. अब 888 itself is an even number, so you can take with the multiple of 2. 2 के मल्टीपल में लेंगे तो 2 का क्या मल्टीपल बनता है, तो 444। अब मेरे को बताइए आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होल रेज टू 444। तो -1 इवन नंबर, इवन है ना, 444 क्या है, इवन नंबर है, तो -1 के पावर में इवन पावर, -1 के पावर में इवन नंबर है, तो इट इज गोइंग टू बी +1, इट इज गोइंग टू बी +1। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज I raised to 93। I raised to 93, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आई। देखो ऑड है ना, तो मैं एक आई को स्प्लिट कर दूंगा अलग से, आई इंटू आई रेस टू 92, इसको मैं इवन में लेके आया, आई रेस टू 92 को मैं जो कन्वर्ट करके लेके आया इवन में लेके आया, तो 1 आई इज एज इट इज, आई रेस टू 92 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर होल रेस टू 2 के मल्टीपल में, इवन आ गया ना ऊपर का पावर, तो 2 के मल्टीपल में मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 2 से उसको डिवाइड कर दो, क्या उसका मल्टीपल बनेगा 46, and now I is as it is, I square is -1 raised to 46, which is I into -1 raised to 46, -1 के पावर में अगेन इवन नंबर आ गया है, देख लो, so again it is going to be +1, बट साथ में मल्टीप्लीकेशन में I है, so I as it is आंसर रहेगा फाइनली। दिस इज व्हाट our answer for I raised to 93. Next question, that is about I raised to 116. I raised to 116. So this is going to be, again it is even number. I can directly write I square whole raised to 58. 58 into 2 करेंगे तो 116 मिलता है स्टूडेंट्स, and now I know I square is -1, -1 raised to 58, that is even number. This is going to be +1, -1 के पावर में इवन नंबर है, that is going to be +1. Next, number 5, that is given as I raised to 403. देखो ऐसा प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिए हुए हैं, बट ये सेम बेसिस पे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस लेना जरूरी है। तो I raised to 403 can be written as I into I raised to 402, और वो इवन नंबर में आ गया, फर्दर आई कैन राइट लाइक I into I square whole raised to, क्या 2 के मल्टीपल में जाएगा 402, यू डिवाइडेड बाय 2, 402 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 201, और 201 जो है ना ऑड है, तो आगे देखो क्या हो जाता है, तो कि I -1, आई स्क्वायर की जगह पे -1 और उसके ऊपर पावर में 201 जो है वो ऑड है, और उसके कारण ये जो -1 के पावर में ऑड नंबर है, तो आंसर आपका आएगा -1।
and finally minus 1 into I, this is going to be minus I, this is going to be minus I, and finally total कितने हैं आगे हैं, next one is 6. बहुत ही सिंपल वे से जाना है, बट इट इज इंपॉर्टेंटली कि भाई ये कन्वर्जन आना चाहिए. नेक्स्ट वन इज आई रेस 1 अपॉन आई रेस टू 58. अभी देखो 1 अपॉन में दिया है 1 अपॉन आई रेस टू 58. सबसे पहले सुनिए इंडाइसिस रूल का, या आप डायरेक्टली उपयोग करना चाहते हो तो अभी ऐसे ही मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करूंगा. नीचे आई रेस टू 58 तो डिनोमिनेटर में ही रहने दो, मैं उसको डिनोमिनेटर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ. आई स्क्वायर होल रेस टू 58 इवन है ना, 2 के मल्टीपल में है ना, तो 2 के मल्टीपल में बैठेगा कि कौन सा नंबर आएगा ऊपर, 29, and 29 is odd number. So next one is 1 upon I square is minus 1 whole raised to 29, 1 upon minus 1 raised to 29, it is going to be minus 1, and 1 upon minus 1 is nothing but minus 1. This can be written as minus 1. Are you getting student? इसका हम अल्टरनेटिवली तरीका ऐसा भी लिख कर सकते हैं, देखो. और सेम क्वेश्चन 1 अपॉन आई रेस टू 58. देखो मैं कैसे कर रहा हूं. पहले तो मैं आई रेस टू 58 को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके जाता हूं. अब उसके लिए नियम, आपके रूल्स मालूम होने चाहिए, इंडाइसिस के जो रूल्स हैं. इफ आई रेस टू इंडाइसिस रूल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इफ x रेस टू n है तो अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ये जब x रेस टू n डिनोमिनेटर में जाना है तो 1 अपॉन x रेस टू n तो होगा, लेकिन पावर नेगेटिव n हो जाएगा. So this can be written under indices rule. You have this particular conversion. So that way, if you bring this I raised, अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, I raised to 58 में ऊपर लेके जाऊंगा तो I raised to 58 ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन वो माइनस हो जाएगा. तो if its position when we change from numerator to denominator or denominator to numerator, पावर का जो साइन है ना वो चेंज होना चाहिए. दिस इज अ रूल. फॉर इंस्टेंस आपके पास ऐसा रहता है x रेस टू माइनस n, तो आप इसको जब ये तो इसको अपॉन में कुछ नहीं तो न्यूमरेटर में है, अब आप उसको नीचे लेके जाना चाहते हो तो नीचे लेके जाओ, अंदर नहीं है, मगर उसके पावर का साइन चेंज कर दो. तो पहले क्या था, वो माइनस था, अब वो क्या हो गया, प्लस. So this way you can have proper conversion. So this is what I raised to minus 50 you have converted. Now this I raised to 58 you can show it like I square whole raised to minus 29. This is minus 1 raised to minus 29. और अब इसका माइनस 1 रेस टू माइनस 29 का आपको वापस में नीचे लेके तो पॉजिटिव नीचे चला जाएगा पावर 1 अपॉन माइनस 1 और अगेन इट इज गोइंग टू बी माइनस 1. तो ये ठीक है, घुमा फिरा के हम लेके आ रहे हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंटली दिस मेथड इज परफेक्ट, फर्स्ट वन. ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट ये मैं इसलिए घुमा फिरा के लेके गया, आपको इंडाइसिस के रूल्स का भी इंफॉर्मेशन मुझे देना था, वो मैंने बात कर लिया. बाकी ये लॉन्ग कट मेथड हो गया, इसके जगह पे मैं तो पहले मेथड ही प्रेफर कर रहा हूं. ओके फाइन, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7 which is given as I raised to 30 plus I raised to 40 plus I raised to 50 plus I raised to 60. ठीक है, अब सबके टर्म्स को अलग अलग ढूंढ के उसमें ऐड करके लेने को बोल रहे हैं. दैट इज व्हाट जस्ट दे हैव एडिशनली गिवन.
आप साथ में सॉल्व करते जाओ या अलग अलग सॉल्व करो, फिर उसमें ऐड करके ले लो, या साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई रेस टू 30 को मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर रेस टू 15, आई रेस टू 40 को लिखता हूँ आई स्क्वायर रेस टू 20, सब इवन नंबर ही है, आई स्क्वायर रेस टू 25, आई स्क्वायर रेस टू 30, और अब हम -1 रेस टू 15 प्लस -1 रेस टू 20 प्लस -1 रेस टू 25 प्लस -1 रेस टू 30। अब देखो पहला नंबर जो -1 के पावर में 15 है, जो उस ऑड नंबर है उसको क्या हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो -1 प्लस -1 रेस टू 20, इवन नंबर है 20 ऊपर पावर में, सो इट इज गोइंग टू बी +1। नेक्स्ट -1 रेस टू 25, 25 ऑड है, इट इज गोइंग टू बी -1 प्लस -1 रेस टू 30, 30 इवन है, इट इज गोइंग टू बी +1। तो ये -1 +1 -1 +1, ये सब कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 +1 -1, all are going to be cancelled and the final result will be 0. Final result will be 0. So this way we can convert as per the given. अब ये जो है ये सब आपको, अब ये एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही मतलब जैसा वो कन्वर्ट करते जाना है, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या दिया है 5th क्वेश्चन में, लेट्स फर्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। मेन क्वेश्चन नंबर 5, show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number, is a real number। ऐसा हमें प्रूव करना है, शो करना है, मीन टू से। तो भाई करते जाइए इसको सिंप्लीफाई, दैट इज गिवन 1 प्लस आई रेस टू 10, मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 30, और अब मैं इसको कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। आई रेस टू 10 को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर होल रेस टू 5, आई रेस टू 20 को लिखेंगे हम आई स्क्वायर होल रेस टू 10, आई रेस टू 30 we can write आई स्क्वायर होल रेस टू 15। So what will be the next step? 1 plus I square is -1, -1 raised to 5, -1 raised to 10, -1 raised to 15. So this is 1 plus -1 है ना, -1 के पावर में 5 है तो -1 प्लस -1 के रेस टू में 10 है, इवन है, +1, और -1 के पावर में 15 है, अगेन -1। So this is going to be 1 -1 plus 1 -1, ठीक है। तो 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल, एंड रिजल्ट फाइनली क्या बचा, 0। अब हमको प्रूव करने के लिए बोला है उन्होंने, शो दैट दिस इज रियल नंबर, तो 0 इज अ रियल नंबर, यस 0 रियल नंबर है, विच इज अ रियल नंबर। व्हाट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, वापस वही बेसिस पे है, ये देखो पावर का कैलकुलेशन जब भी आएगा, अब मैं बोलूंगा आपको कि सिमिलर फैशन से वी आर सॉल्विंग इट, वी आर नॉट हैविंग एनी अदर टाइप ऑफ कंसेप्ट हियर, कि वो पावर की बात आ गई तो वही सिस्टम से हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट यू कैन नोटिस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, okay, moving to the question number 6, find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो सब क्वेश्चंस हैं. देयर इज फर्स्ट वन दैट इज आई रेज टू 49 प्लस आई रेज टू 68. अगेन पावर का ही मामला है यहाँ सब. प्लस आई रेज टू 89 प्लस आई रेज टू 110. बस इसको आप सिंप्लीफाई करते जाना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So I raised to 49. I can write I into I raised to 48 plus I raised to 60. I can write I square whole raised to 68. Even number ऐसे 2 के मल्टीपल में आएगा. This is going to be 34 plus I raised to 89. I can write I into I raised to 88 plus I raised to 110 को मैं लिख सकता हूँ I square whole raised to 55. Next I into I raised to 48. I can write I square whole raised to 24 plus I square is minus 1 raised to 34 plus I into I raised to 88. I can write I square whole raised to 44. I square minus 1 whole raised to 55. So it is going to be I minus 1 raised to 24 plus minus 1 raised to 34 is going to be plus 1. I into minus 1 whole raised to 44 प्लस आई माइनस 1 रेज टू 55. माइनस 1 रेज टू 55 ऑड नंबर है ऊपर तो ये माइनस 1 ही रहेगा. फाइनली आई माइनस 1 रेज टू 24 प्लस 1 प्लस आई इंटू माइनस 1 रेज टू 44 प्लस 1 minus 1. So this plus 1 minus 1 is cancelled and this is going to be I plus I. This is nothing but 2I. So इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला नहीं है. जस्ट दे हैव सेड टू फाइंड इट्स वैल्यू. जस्ट वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू. दैट्स इट. हमको उतना ही करना है. आगे इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं है. यू कैन डू इट. आपको जो बोला भी होगा कि a प्लस बी आई में कन्वर्ट करिए तो वी कैन इजीली सिंप्लीफाई दैट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो. सिक्स का सेकंड दैट इज आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू 4. इसको सिंप्लीफाई करना है. सो इट इज इजी एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन. इट इज क्योंकि पावर उसके कम दिए हैं. फर्स्ट आई एज इट इज प्लस आई स्क्वायर टू माइनस 1 प्लस आई क्यूब को मैं लिखता हूँ आई इंटू आई स्क्वायर. I raised to 4. I can write I square whole square. I, this is minus 1 plus I square is minus 1 plus minus 1 whole square. This is I minus 1 minus I plus 1. So minus 1 plus 1 cancel. I minus I is going to be cancelled. Answer is 0. So बहुत ही आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे. They are very easy questions. Now moving to the question number 7, which is the next one. Again in that same category के basis पे question है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टर्म दिया है इस तरह से कि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. That is question number 7 given as question number 7, main question number 7. Find the value okay, find the value
ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 8 प्लस डॉट 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 मतलब क्या, बीच में बहुत सारे और इस तरह से टर्म आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड इट विल गो टिल आई रेज टू 20। अब आप जरा समझ लेना पहले क्वेश्चन को। आई स्क्वायर, फिर आई रेज टू 4, फिर आई रेज टू 6, फिर आई रेज टू 8, सब इवन नंबर ये देखो पावर में, आर गेटिंग, सब ही टर्म्स इवन नंबर है। अब मैं इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं इन बिटवीन, तो मुझे एक एक का मैं इंडिविजुअल वैल्यू कम क्रिएट करता हूं और उसको बाद में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो व्हाट इट विल बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर I square, I will obtain I square value, that is minus 1 basically available hai. I raised to 4, that is I square square, which is going to be minus 1 square, which is plus 1. Then you obtain I raised to 6. This is I square whole cube, which is minus 1 cube, which is going to be minus 1. Then you find out I raised to 8, which is I square whole raised to 4, 4 even है, minus 1 raised to 4 is going to be 1. Then I raised to, next क्या आ जाएगा 8 के बाद 10, डॉट 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 है ना, 8 के बाद ये आएगा I raised to 10, so it will be I square whole raised to 5 minus 1 raised to 5, जो odd है it is going to be minus 1. Next one is I raised to 12, that is I square whole raised to 6, which is going to be minus 1 raised to 6, which is 1. Even है ना 6. Similarly, I raised to, now next one will be 8, I raised to 14. It is going to be I square whole raised to 7, that is minus 1 raised to 7, that is minus 1. Next is I raised to 16, that is I square whole raised to 8 minus 1 raised to 8, which is plus 1. I raised to 18, which will be I square whole raised to 9 minus 1 raised to 9. This is odd powers, which is minus 1. Then I raised to 20, that is going to be I square whole raised to 10 minus 1 raised to 10, 10 is even, so it is plus 1. तो आप अब सभी वैल्यू को लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, जो रिक्वायर्ड है ना 1 प्लस आई स्क्वायर इज, जो हमने वैल्यू सब निकाले माइनस 1 प्लस आई रेज टू 4, that is 1 plus I raised to 6 minus 1 plus I raised to 8 plus 1 plus I raised to 8, I raised to 2, I raised to 4, I raised to 6, I raised to 8, I raised to 10, that is minus 1 plus I raised to 12, 1, I raised to 14 minus 1, I raised to 16, 1, I raised to 18 minus 1, I raised to 20, 1. अब आप देखो स्टूडेंट क्या हुआ, ये 1 तो पहले का एक कांस्टेंट दिया ही था उन्होंने, दिस कांस्टेंट वाज गिवन अर्लियर, आई स्क्वायर से लेके नेक्स्ट आई रेज टू 4, आई रेज टू 6, आई रेज टू 8, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये सब जाके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल,
-1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1, only 1 remains. That is what that whole expression is equal to 1. Find the value of, बोला ना, find the value of, तो वो हमको मिल गया स्टूडेंट्स। बस ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है। अगेन दैट इज द डिपेंडिंग ऑन द पावर पार्ट, पावर के बेसिस पे कैलकुलेशन के आधार पे जितने क्वेश्चन अभी हमने देखो आगे किए हैं वो सब क्वेश्चन में इस तरह से पावर का कैलकुलेशन आया है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 7 एंड स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन में मैं एक लास्ट आज 8th क्वेश्चन आज कंप्लीट करता हूं एंड आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या इंस्ट्रक्शन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y which satisfy the following equations. और ब्रैकेट में लिखा है x और y जो है वो बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज गिवन है। अभी देखो यहाँ इक्वेशन बोल रहे हैं, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर द इक्वेशन पैटर्न इज गिवन? इक्वेशन के पैटर्न में क्वेश्चन दिया है और उसको हमें आगे सॉल्व करना है जिससे कि x और y का हम वैल्यू ढूंढ सके। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y. So is a question format is in the equation pattern. First one is x plus 2y plus 2x minus 3y into I, बाहर ब्रैकेट के बाहर I मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 4i is equals to 5. Now properly understand, this is a different type of question. Just first you understand how do we perform the process and it is easy, कुछ difficult नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, now let me discuss few things about the question first. ये जो क्वेश्चन है ये एक इक्वेशन के पैटर्न में है। क्यों? क्योंकि आपको इज इक्वल्स टू अवेलेबल किया हुआ है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। सो बट ऑब्वियस इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इक्वेशन पैटर्न, और x और y की वैल्यू हमें उसमें से फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सभी ब्रैकेट वगैरह एक्सपांड कर देना है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? x plus 2y प्लस ये ब्रैकेट, ये i मल्टीप्लीकेशन में है ना बाहर, उसको आप ओपन कर देंगे तो इट विल बी 2xi minus 3yi plus 4i as it is equal to 5 as it is. अब स्टूडेंट्स सब कुछ ओपन हो गया, ब्रैकेट वगैरह जितने भी है ओपन हो गए। अभी मुझे इसमें जो कोई लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म इन द सेंस इमेजिनरी टर्म जितने भी है वो एक साथ लेंगे हम, और रियल टर्म्स जो है वो एक साथ लग रखेंगे। जैसे कि रियल टर्म कौन से स्टूडेंट्स? तो कि ये x, और जिसमें आयोटा नहीं है ना, i इन द सेंस, और जिसमें i है वो इमेजिनरी टर्म है। 2i ये रियल नंबर है, इसमें i नहीं है, और राइट हैंड साइड में 5 वो भी रियल है। अब आप देख लो 2xi 3yi 4i, इसमें i है। in that case you can say these three terms are imaginary. Are you getting?
सो रियल टर्म को एक साथ रखो और एक ब्रैकेट में रखो, तो व्हाट वी कैन डू फर्दर, x प्लस 2y, ये तो दोनों साथ में है ही, दोनों रियल टर्म है। ये 5 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए -5, और इसके साथ इसको रखिए। ओके, तीनों तीन इमेजिनरी टर्म वो तो एक साथ है ही, +2xi -3yi +4i, उसका भी एक ब्रैकेट बना लो। अच्छा, अभी राइट हैंड साइड में 5 जो था वो तो यहाँ आ गया, तो राइट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट नाउ इन राइट हैंड साइड, सो इट इज बिकमिंग 0, इट इज गोइंग टू बिकम 0। आफ्टर दिस राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा है, in the sense only 0 is remaining, which is a real number. So can I write 0 plus 0i as an imaginary number? आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आप 0i लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? और मैं पर्पसफुली लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे सर नहीं था जो टर्म, आप क्यों उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आई एम पर्पसफुली इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर 0i so as right hand side completely becomes in the form of a plus bi। इसका कुछ कारण है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आइए, वन स्टेप इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इमेजिनरी टर्म में आई है सभी में, उसको में से आई कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3y प्लस 4 आई कॉमन आ गया, देख लो। एंड राइट हैंड साइड आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 प्लस 0i। अब आप शांति से देख लीजिए, ये जो फॉर्मेट हुआ है a प्लस बी आई, किसके कॉन्टेक्स्ट में दिखता है? a प्लस बी आई। सो दिस इज a प्लस दिस इज b एंड दिस इज i। और राइट हैंड साइड में भी ये जो फॉर्मेट है ये भी है a प्लस बी आई का फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी a प्लस बी आई का फॉर्म, राइट हैंड साइड में भी a प्लस बी आई का फॉर्म। देन व्हाट वी कैन डू, by comparing real and imaginary parts, we get, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे अपने को a प्लस बी आई के फॉर्म में मिला है ना सिचुएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में a जो रियल पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में भी रियल पार्ट जो a है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में a वाला पार्ट क्या है? x प्लस 2y माइनस 5। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है? 0। एंड इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो b को b से कंपेयर करेंगे, तो इट बिकम्स 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आ चुके हैं, linear equation you can say, and now we can solve both this. Let us continue with this is number 1, this is number 2, और आप इस मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 से। ये मालूम है ना लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर। तो नाउ वी कैन से सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अच्छा, ऊपर पहले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, सो इट बिकम्स 2x plus 4y is minus 10 is equal to 0, and the second equation is as it is 2x minus 3y plus 14 is equal to 0। अब मैं बोलता हूं subtracting, so change the sign, this becomes minus, this becomes plus, this becomes minus, so minus 2x plus 2x is going to be cancelled, my plus 4y plus 3y 7y minus 10 minus 14, it is going to be minus 24 is equal to 0, and from this y is going to be 24 upon 7, therefore y is equals to
क्या आंसर बनेगा? y का वैल्यू क्या जनरेट होता है स्टूडेंट्स? So first equation I have multiplied by 2, and the second equation, this is as it is, that is 2x minus 3y plus 4 is equals to 0. Now what I can do? Subtracting. So we have to change the sign. This is going to be minus plus minus. Minus 2x plus 2x cancel. Plus 4y plus 3y, this is going to be 7y. And minus 10 minus 4, it is going to be minus 14 is equals to 0. Therefore, y is equals to 14 upon 7. Therefore, y is equals to 2. Y is equals to 2. अब स्टूडेंट ये तो स्कूल में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करने की ये सब प्रोसीजर आपको मालूम है. नाउ व्हाट विल डू? वी विल सब्स्टिट्यूट, पुट y is equals to 2 in any of the equation number first में substitute कर दीजिए in equation number first. So what is the first equation in this is your first equation. और आप सेकंड में रखो, किस में भी रखो चलता है. This is x plus 2 into 2 plus minus y is equal to 0. So from this you are going to get the value of x. So x minus 1 is equals to 0. Therefore x is equals to 1. तो स्टूडेंट ये हमें x और y का वैल्यू ऑब्टेन हो गया. इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड बता देता हूं. मतलब आपने यहाँ मैंने जिस तरह से आपको एक्सपांड करके बताया कि सब कुछ आप ओपन कर दो और उसमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिसाब से. इसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट मेथड से आपको बता देता हूं. सेम क्वेश्चन वी कैन सिंप्लीफाई विथ अल्टरनेट मेथड. क्वेश्चन को करने का जो हिसाब है कि भाई यहाँ जैसे हमने कंपेयर किया और a प्लस बी आई के फॉर्म में दोनों साइड लेके आए, वैसा ही है, सिस्टम वही है. मगर मैं जो ये क्वेश्चन को वापस से रेफर करूं, एट्थ का फर्स्ट, एंड दिस वाज क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 2x minus 3yi प्लस 4i इज इक्वल टू 5. ये क्वेश्चन है, बराबर है. अब देखो मैंने इसको एक्सपांड करके लिया था अर्लियर मेथड में. व्हाट आई कैन डू, रादर देन expanding this, I am keeping this as it is. X plus 2y bracket ये भी as it is, 2x minus 3y bracket के बाद I. क्या करता हूं मैं, राइट हैंड साइड में यहाँ 4i को ट्रांसफर कर रहा हूं. दिस बिकम 5 minus 4i. You got this point? मतलब अब हुआ क्या, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा a प्लस बी आई के फॉर्मेट में पहले से ही है, मैंने उसको एज इट इज रखा. राइट हैंड साइड अपने आप a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया जैसे मैंने 4i को वहां ट्रांसफर किया, a प्लस बी आई के फॉर्म में वो आ गया. नाउ बाय कंपेयरिंग रियल and imaginary parts, we get x plus 2y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to minus 4.
आप देख लो, रियल ए के साथ कंपेयर हुआ और बी के साथ कंपेयर हुआ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो सॉल्विंग equation 1 and 2, so this equation will become 2x plus 4y is equals to 10. Second equation as it is, 2x minus 3y is equals to minus 4. Subtracting, we are going to get सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, दिस minus 2x plus 2x cancel, plus 4y plus 3y 7y 10 plus 4 14, and this is going to be y is equals to 14 upon 7, therefore y is equals to 2. मिला कि नहीं स्टूडेंट्स? और वही पुट y is equals to 2 in equation number first, we are going to get x plus 2 into 2 is equals to 5. Therefore, x plus 4 is equals to 5. Therefore, x is equals to 5 minus 4. Therefore, x is equals to 1. So, this is what अल्टरनेटिव सिस्टम मैंने किस तरह से ऑब्जर्व करके उसको मतलब कंपेयर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है, खाली ये एक्स्ट्रा टर्म है, उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी जो a प्लस बी आई के फॉर्म की जरूरत है वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। एंड वी कैन कंपेयर कभी होता है इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी a प्लस बी आई के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड भी a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तब जाके कंपेयर होता है। वो कंपैरिजन भी किसका होता है? रियल पार्ट से कंपेयर होता है, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होता है। सो ए के साथ बी के साथ। फाइन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया। इक्वेशन पैटर्न के क्वेश्चन है ये। नाउ लेट मी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8th का क्वेश्चन नंबर सेकंड, and this is again the similar type of question, and which is given as x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I is equals to I। ध्यान रखो ये भी इक्वेशन के पैटर्न में ही है क्योंकि इज इक्वल टू दिया है। अच्छा, उसके पहले ये क्वेश्चन में तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी है दोनों के, तो यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, therefore it becomes x plus 1 into 1 minus I plus y minus 1 into 1 plus I whole upon 1 plus I into 1 minus I is equals to I। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, x into 1 minus I plus 1 into 1 minus I plus y into 1 plus I minus 1 into 1 plus I whole upon a, नीचे देखो डिनोमिनेटर में, इट इज अ फॉर्म ऑफ a plus b, a minus b, so it is going to be a square minus b square, मतलब 1 square minus I square is equals to I। Therefore this is x minus xi plus 1 minus I plus y plus yi minus 1 minus I whole upon 1 square 1 minus I square is minus 1 is equals to I। अब देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर में रियल टर्म्स कौन से हैं? x प्लस y, ये रियल टर्म मैंने साथ में लिख दिए। प्लस 1 माइनस 1 इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। ओके, अब मेरे पास जो इमेजिनरी टर्म है वो कौन से हैं? तो के माइनस एक्स आई
प्लस वाई आई और माइनस आई माइनस टू आई, ये भी इमेजिनरी टर्म है, अपॉन में वन माइनस माइनस वन, वन प्लस वन, दिस इज गोइंग टू बी टू इज इक्वल्स टू आई। क्लियर है? सब टर्म कंप्लीटली कवर हो जाते हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल हो गया, जो मर्ज हुए हैं और जो साथ में रखे हुए दिख रहे हैं आपको, रियल रियल टर्म्स इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी टर्म्स एक साथ रखे हुए हैं मैंने। अब हम क्या करते हैं, ये टू को वहां ट्रांसफर कर देते हैं। और मैं और एक चीज बता देता हूँ आपको, न्यूमरेटर में मैं रियल टर्म का एक ब्रैकेट बना देता हूँ, और जो भी इमेजिनरी टर्म है उसमें से आई कॉमन लेके रखता हूँ। तो इट इज गोइंग टू बी माइनस, अच्छा और माइनस भी कॉमन आ गया, ध्यान रखो मैंने बार माइनस रखा है, मतलब क्या है, ये माइनस भी कॉमन आया है, तो माइनस कॉमन आया तो x बचेगा, ये प्लस वाई आई में माइनस वाई बचा है, माइनस टू आई में ये प्लस टू बचेगा, और आई यहाँ कॉमन दिखाया देख लो स्टूडेंट्स, और सामने ये चला गया टू आई। अब यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई प्लस टू आई, राइट हैंड साइड में रियल टर्म नहीं तो मैं जीरो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जीरो प्लस टू आई। ये हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था कि जो रियल टर्म नहीं है तो रियल पार्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय जीरो। आर गेटिंग? सो नाउ आई कैन से कि भाई लेफ्ट हैंड साइड भी a प्लस बी आई का फॉर्म है, राइट हैंड साइड भी a प्लस बी आई का फॉर्म है, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग रियल and imaginary part, we get okay x plus y is equals to 0, and another equation we are going to get minus x minus y plus 2 is equals to 2। साइन साथ में रखने का स्टूडेंट, हाँ, तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर में कर देता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इट बिकम माइनस एक्स plus y minus 2 is equals to 2, therefore minus x plus y is equals to 2 plus 2, therefore minus x plus y is equals to 4। This is going to be equation number second, or now I am solving equation first and second। तो क्या पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सॉल्व होने के लिए तैयारी में ही है, क्योंकि ये माइनस एक्स प्लस एक्स गोइंग टू बी कैंसल, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, एडिंग, व्हाट वी हैव टू से, एडिंग माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, दिस इज गोइंग टू बी 2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y is equals to 4 by 2, therefore y is equals to 2। Now put y is equals to 2 in equation number first. Equation number first is x plus y is equal to 0, x plus y that is 2 is equals to 0, therefore x is equals to minus 2। तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू माइनस 2। अब आपको स्टूडेंट देखो आंसर तो आ चुका, अब आपको जो वेरीफाई करना है कि ये x और y का आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो क्या करने का स्टूडेंट, ये x और y का आंसर है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन किधर है आपका, क्वेश्चन किधर गया, ये रहा देखो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, इसमें आप x और y के जगह पे रख दो। हाँ चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वेरीफाई। तो x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, ठीक है, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -2
plus 1 upon 1 plus I 2 minus 1 upon 1 minus I। तो ये हो जाना है -1 upon 1 plus I 2 minus 1 upon 1 minus I। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी -1 plus I plus 1 plus I upon 1 square minus I square। तो ऊपर देखो ये -1 plus 1 कैंसिल है, I plus I दिस इज गोइंग टू बी 2I अपॉन 1 minus I square इज -1, 1 square इज 1 ना, और ये क्या बचेगा 2I अपॉन 1 plus 1 and that is going to be 2I upon 2, 2 cancel, which is going to be I, which is going to be RHS। आ गया ना स्टूडेंट आंसर, राइट हैंड साइड में क्या था, वेरीफाइड। यही चीज मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बताना था मुझे, यू कैन वेरीफाई इट। तो विद दिस मतलब ये वेरीफाई एग्जाम में करने बैठना नहीं है, टाइम है तो ठीक है, एल्स यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव सॉल्व्ड, आंसर जो मिला है आपको, आपको श्योर शॉर्ट पता रहे कि भाई आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है, देन नो नीड फॉर वेरिफिकेशन। दिस इज जस्ट इनिशियली, आप जब पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, तो आपका एक्साइटमेंट रहता है टू नो कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। बट स्लोली एंड स्टडीली when you do more and more questions, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन यू विल ऑल्सो फील दैट अभी कोई मेरे को ये वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर इट। बट दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट रहता है, तो वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं, नॉट एडवाइज्ड in examination point of view, because in that you will be going to waste your time unnecessarily। So with this we conclude today's lecture। 8th क्वेश्चन तक हो गया है, 9th is one remaining which is of something of different nature। I will explain first how we have to do that type of questions, and till that time you please have proper practice this same type of question। You look at the solved example and try to solve by your own and practice all these exercise questions also। Thank you friends।